Commerce and Industry, Shri Pathikbhai Patwari, to initiate this session with his welcome address. Good afternoon and a warm welcome. Honorable Minister for Railways, Communication, Electronics, Information and Technology, Shri Ashwini Vaishnavji. Honorable Mia Sir, Principal Secretary Education, Shri S.J. Haider Sir, IAS. Past Presidents of Gujarat Chamber of Commerce, dignitaries from Railways, government officials, members of GCCI, youth wing members, members from the Business Women Committee, regional chambers, friends who have been connected on the virtual mode, members present here today, friends from press and media, one and all present here today. It gives me immense pleasure to welcome you all on this book reading and interactive session on Modi at 20, Dreams Mid Delivery. Well, sir, it's difficult and a Herculean task to ask this audience about and address them about PM Modi. Gujarat has witnessed his journey from a chaiwala to a karyakarta to a CM and now our Honorable Prime Minister. As CM, we have witnessed some of the remarkable statures that Gujarat has achieved in its able leadership. For example, Vibrant Gujarat, it put Gujarat into a global league. It was Vibrant Gujarat Investor Summit that paved way for investments that flowed to India. The rest states simply had to copy so that they could follow the Gujarat model. So many took dig at the VG and expressed the inability of Vibrant Gujarat. But today, as a Gujarat, we all stand that how useful and how good it has been for the economic growth of the Gujarat. Friends, they say PHAB makes a lot of political jargons and campaigns. But please tell me, is Startup India a political campaign? Is Scale India a political campaign? Is Make in India a political campaign? Beti Bachao, Beti Padhao, Azadi Ka Amrit Mahotsav, Khelega India to Badega India, Sabka Saath, Sabka Vikas. These are no more a political jargons or campaigns. These are revolutionary movements. Friends, it is just that seed has been sowed. It is the plant that will grow, and tomorrow when it becomes a tree, India will nurture out of this initiatives taken by our Honorable Prime Minister. Did we ever hear Narendra Modi Awas Yojana? It was always Pradhan Mantri Awas Yojana. That shows how humble our Honorable Prime Minister has been. His visionary ideas, far-sighted approach, and strategic implementations of policies have paved way for the 3 trillion economy for India, which we achieved much before the target. And we are all confident that the 5 trillion economy target would be achieved much before the deadline. Manufacturing of iPhone 14 and the chip manufacturing facility that was announced by Vedanta with Foxconn, as with JV with Foxconn yesterday, is just an example of his stature. We have already become the 5th largest economy, but it would be much faster when we are the 3rd largest economy globally. He is no more a national leader. He is a global leader. He made India achieve its due recognition and respect, which we all deserve. Today, we are fortunate to have amongst us our Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnavji, who too has a big Gujarat connect. He hails from Bhavnagar, did his MTech from IIT Kanpur and MBA from Wharton University, UPenn. Finishing his civil services, he was blessed to have worked with late Shri Atal Bihari Vajpayee ji, our Honorable Prime Minister. He is one who has seen both sides of the table as a bureaucrat and as a minister. I think we cannot have someone better to speak on Modi at 20 other than the minister himself. Sir has been instrumental in various initiatives at railways, may it be the electrification of railways, increasing the security in railways, development of freight corridor, and strengthening PPP mode participation in the railways. Even as the IT minister, he is visualizing and implementing some of the landmark initiatives, such as the Gati Shakti portal and making legal amendments so that social media companies are made accountable. It is indeed a pleasure to have you today. Before concluding, I would like to mention that Gujarat has gifted 2 Ironmans to the world. One is Sardar Vallabhbhai Patel and second Narendra Bhai Modi.
I'm sure his I'm sure with his able leadership, India is going to be a global giant pretty soon. Thank you. Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you very much, Pathik sir. We are honored by the presence of our esteemed chief guest. May I request President Shri Pathik Patwari and Senior Vice President Shri Ajay Bhai Patel to welcome our chief guest, Honorable Minister of Railways, Communication and IT, Shri Ashwini Vaishnav ji, and do the honor. Thank you, sir. I request Vice President JCCI, Shri Yogesh Bhai Parekh, to kindly felicitate Mayor of Ahmedabad City, Shri Kirit Bhai Parmar. Thank you, sir. I request Honorary Secretary Regional Shri Dilip Padya and Secretary JCCI Shri Anil Jain to please come forward and welcome Shri S.J. Heather, IAS, Principal Secretary, Education Department. Thank you, sir. Honorable Union Minister of Railways, Communication and IT, Shri Ashwini Vaishnav is a former IAS officer of the Odisha cadre. He is a gold medalist in BE. He studied industrial management at IIT Kanpur and earned MTech in 1994. In 2008, he joined the MBA program at the Wharton School, USA in Finance and Strategy. After completing the graduation from IIT Kanpur, he opted for public life and got into prestigious Indian Civil Services as an IAS officer. In political life, he's putting the unique experience of civil service, corporate working, and entrepreneurship to policy making. His focus is on economic, finance, and technology-related policy matters. He believes that India can transform with the energy of 1 million entrepreneurs. To harness the energy and to prevent the damage done by carpetbaggers equivalent in the early years of reform, India should have a dynamic policy structure that is nimble yet stable. Ladies and gentlemen, please give a round of applause and welcome Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnav for his keynote address. કેમ છો? ખૂબ મજામાં. पंचासीन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट साहब, अहमदाबाद के मेयर साहब, सभी पदाधिकारी, मेरे नन्हे साथी, नन्हे तो नहीं बड़े हैं, कॉलेज के सभी साथी, उपस्थित गणमान्य नागरिकगण और मीडिया के बंधु, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो वीडियो से वीसी से जुड़े हैं उन सबको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और एक ये ऐसा अवसर है जिस अवसर पे जैसा अभी पथिक भाई बोले, बड़ा मुश्किल है, वाकई बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने तो वो सौभाग्य देखा है, गुजरात की डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो आपने देखी।
अगले कुछ दिनों पहले मैं और हैदर साहब किसी एक और फंक्शन में थे, तो हैदर साहब मुझे बता रहे थे किस तरह से मोदी जी जब सीएम साहब थे तब एक एक पॉइंट पे कैसे बारीकी से प्लानिंग करते थे। साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, व्यापारी बंधुओं के साथ कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं पे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम आए, किसानों की, खेडूतों की प्रॉब्लम हो, ऐसे में आपके सामने मैं खड़ा हूँ ये बताने के लिए कि कैसे मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो मैं कौन सा विषय लूं जिस विषय में आपको मैं एक नया एग्जाम्पल दे सकूं, ये मैं सोच रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल लूं जो एग्जाम्पल अभी हाल ही के दिनों के हैं। जब डिजिटल इंडिया की बात आई 7 साल पहले, प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया 3 बहुत बड़े प्रोग्राम चालू किए। तो जैसे अभी प्रतीक भाई बोल रहे थे, कई लोगों ने उसका क्रिटिसिज्म किया कि ये तो पॉलिटिकल बात है, कुछ नहीं होना चाहना। तो मैं एक उदाहरण उससे जोड़ूंगा, दूसरा उदाहरण जोड़ूंगा टेक्नोलॉजी से, और तीसरा हम सबके जन जन से जुड़ा हुआ एक उदाहरण जोड़ूंगा। 3 उदाहरण आपके सामने रखूंगा, फिर कोशिश करेंगे जितना हो सके हम इंटरैक्टिव डिस्कशन करें तो और ज़्यादा मजा आएगा उसमें। आज से 8 साल पहले हिंदुस्तान में कितने स्टार्टअप्स होते? पीछे जो हमारे छात्र साथी खड़े हैं वो बताएं। 8 साल 9 साल पहले की अगर जाओ, कितने स्टार्टअप्स होते होंगे? गिने चुने 400, 450, 500। आज कितने कितने बताओ बताओ। सुनाई नहीं दे रहा? अरे वही खाना नहीं खाया लगता है। खाना तो मैंने नहीं खाया, लेकिन मेरी आवाज, मेरे सामने तो माइक है। 74,000, 74,000 रजिस्टर्ड, 74,000। दुनिया का टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है भारत। तो स्टार्टअप इंडिया का जो वो विजन था, जो ड्रीम थी, उसकी डिलीवरी किसमें है? 74,000 स्टार्टअप्स। और ये 74,000 स्टार्टअप्स में 104 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी रफली 8,000 करोड़ के रुपए के आसपास। ऐसे ऐसे 104, पूरा पूरा एक एक कॉन्टिनेंट होता है, उसमें 40-50 यूनिकॉर्न बनते हैं। एक अपने भारत के अंदर 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न। कौन कहता है कि भाई ये केवल ड्रीम था? उस ड्रीम के साथ डिलीवरी जुड़ी हुई है। हर एक डिलीवरी के पीछे मेहनत होती है। एक एक पग पग पे देखना पड़ता है कि क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, क्या पॉलिसी में दिक्कत आ रही है, क्या इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, क्या टैक्स में दिक्कत आ रही है, क्या फंडिंग में दिक्कत आ रही है, क्या कोई लीगल अड़चन आ रही है। सबको देख के एक 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 चीज को सॉल्व करना। मेक इन इंडिया, शेर देखा आपने? मेक इन इंडिया जब बात करते थे तब लोग सोचते थे कि यार हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम्स है, कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन सकते हैं। आज देखिए, फिर मैं एक छोटा सा क्विज लेता हूँ। 8 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में कितनी होती थी? कोई सुनता था कि मोबाइल फ़ोन बनते हैं? नगण्य, बिल्कुल प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होती थी। आज कितनी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग? कोई अंदाज़ा लगाएं, कितनी होगी अंदाजन? 6 लाख करोड़। 6 लाख करोड़ काम करने वाले रोजगार है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 25 लाख रोजगार है, 25 लाख आज आज मौजूद है। 25 लाख रोजगार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। और हिंदुस्तान का क्या नंबर है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में? दूसरा नंबर।
विश्व में ऑलरेडी टॉप 3 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स में हिंदुस्तान की गिनती होती है। और अगला जो आईफोन बनेगा वो आईफोन दुनिया के साथ समकक्ष भारत में बनेगा। जब बाकी दुनिया में बन रहा होगा, भारत में बन रहा होगा। ये एडवांसमेंट है, एक थॉट प्रोसेस है, एक विजन है, एक सोच है, एक ड्रीम है, जिसकी डिलीवरी इन रिजल्ट्स में दिखाई दे। फार्मास्यूटिकल तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गुजरात तो फार्मास्यूटिकल का बेस है। बहुत एपीआई, कितनी बड़ी दिक्कत होती थी एपीआई की, कैसे कोई कभी भी हमारी गर्दन दबा सकता था, कैसे एक चाबी घुमाई और पूरी इंडस्ट्री को बंद कर दे। आज आप में से बताओ कितने लोग जानते हैं एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में कितनी तेजी से बन रही। कोई सेक्टर उठा के देख लीजिए, स्टील, बेस्ट से बेस्ट स्टील आज दुनिया का हिंदुस्तान में बनता है। कोई भी एग्जाम्पल दे दो, ट्रेन्स, कभी सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान से मेट्रो के कोच विदेश जाके एक्सपोर्ट होंगे। अभी थोड़े दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर के साथ मुलाकात थी। मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ भारत से बने हुए मेट्रो कोच गए, कैसी है उसकी परफॉर्मेंस? इतनी शानदार है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ भारत से ही खरीदेंगे, ऐसा उनका स्पष्ट मत था। एक एक सेक्टर अगर हम उठा के देखें तो मेक इन इंडिया का रिजल्ट एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। और ये शुरुआत है, क्योंकि जब भी कोई काम चालू करते हैं, गाड़ी चलानी है, तो फर्स्ट गियर में डालते हैं, ज्यादा स्पीड आती है नहीं आती है? कम ही आती है स्पीड। सेकंड गियर में डालते हैं, ज्यादा स्पीड आती है। और जब थर्ड गियर, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, उससे पहले का छोटा गियर भी है अभी, वो गियर भी, दोनों गियर लगने चाहिए प्रॉपर। जब लगेगा थर्ड गियर तो और स्पीड से गाड़ी दौड़ेगी ना, दौड़ेगी। तो ये होता है एक कंसिस्टेंट एफर्ट, एक ऐसा प्रभाव, एक ऐसा विजन, एक ऐसा ड्रीम, जिसके पीछे पूरी मेहनत के साथ डिलीवरी करने की क्षमता। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, मैं आपको एकदम अभी का तुरंत का एग्जांपल देता हूं। सारी दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जिनके पास पूरा 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी एंड टू एंड है? बताओ भाई, गिनती कितने हैं? कितने देश होंगे? अंदाजा लगाते हैं, कितने हैं? सही कह रहे हैं, एकदम सरस, एकदम सरस, खूब सरस छे। सरस सही सही वर्ड यूज किया, खूब चौकस ना, सरस सरस। एकदम करेक्ट आंसर। केवल 5 देश, केवल 5 देश है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी एंड टू एंड है। और अभी मोदी जी ने हम सबको टारगेट दिया कि पूरा 4G टेक्नोलॉजी स्टैक और पूरा का पूरा 5G टेक्नोलॉजी स्टैक एंड टू एंड, कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, टेलीकॉम इक्विपमेंट और मोबाइल हैंडसेट, कंप्लीट एंड टू एंड पूरा हिंदुस्तान में डेवलप करना। ये ड्रीम था। अब इस ड्रीम के पीछे देखिए, मैं आपको कैसे एग्जांपल देना चाहता हूँ डिटेल में, कैसे मोदी साहब ने उस ड्रीम को डिलीवरी में कन्वर्ट किया। उन्होंने सबसे पहले देखा कि कौन सी ऐसी संस्था है जिस संस्था में बड़ा वॉल्यूम आ सकता है। भाई जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक प्रोडक्शन किस बात का करोगे? आप तो सब बिजनेस में हो। जब तक वॉल्यूम नहीं है, डिमांड नहीं है, मार्केट नहीं है, तो कैसे प्रोडक्शन करोगे? डेवलप करके लैब में तो रखना नहीं है। तो उन्होंने देखा एक संस्था है BSNL, भारत संचार, जिस संस्था में वॉल्यूम आ सकता है। कैसे वॉल्यूम आ सकता है? भारत संचार के कुल मिला के 1,20,000 से ज्यादा टावर है, 1,25,000 टावर समझो, 1,25,000 टावर है। 1,25,000 टावर में अगर कोई टेक्नोलॉजी चलती है, दुनिया में तो ऐसे कई सारे देश हैं जिसमें इतनी जनसंख्या भी नहीं है, तो वो तो टेक्नोलॉजी दुनिया को जीतेगी जीतेगी। तो फिर मोदी साहब ने कहा कि BSNL में भारत का बना हुआ टेक्नोलॉजी ही लगेगा। पहला देखिए कैसे सिस्टमेटिकली काम करते हैं, आप तो जानते ही। पहला कदम ये लिया। दूसरा कदम लिया कि अब टेक्नोलॉजी डेवलप कौन करेगा? टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो कोई ना कोई एक बहुत ही ब्रेन वाली लैब वाला
संस्था होनी चाहिए। सी डॉट को चुना टेक्नोलॉजी डेवलप करने का, और सी डॉट के साथ जोड़ा 8 IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को। सी डॉट आपने सबने नाम सुना होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, बहुत अच्छी संस्था थी, बड़े गंदे फेज में गई, काफी गिरावट आई, लेकिन अब 4 सालों से, पिछले 4-5 वर्षों से इसमें वापस एक अच्छी स्ट्रेंथ आई, ताकत बनी है। IITs को सबको जोड़ा, ये हो गया डेवलपमेंट का। अब मार्केट में कौन लेके जाएगा? मार्केट में कोई सरकारी संस्था ले जाए इतनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है। मार्केट में ले जाने के लिए उन्होंने ओपन टेंडर किया। ओपन टेंडर के जरिए से एक सिस्टम इंटीग्रेटर जोड़ा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को, टाटा को जोड़ा साथ। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है वो काम डेवलप भी हो, और डेवलप होके उसको इंस्टॉलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मार्केट में ले जाना, वो सब व्यवस्था भी हो। साथ ही साथ जोड़े 30 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरर जो कि इक्विपमेंट बनाते हैं। PLI की स्कीम लेके आए। आज 30 इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे पास जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट बनाते हैं। और हैंडसेट, मोबाइल फोन, वो मैं आपको बता ही चुका हूं पहले, एक से एक बड़ी संस्थाएं जितनी भी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में है, उन सबको हिंदुस्तान में जोड़ा। तो अब ये एंड टू एंड हमारा 4G का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ पिछले मार्च महीने में, और अब 5G का बहुत जल्दी PM साहब 5G का पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च करेंगे आगामी कुछ ही दिनों में। तो जो सबसे डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है दुनिया में, उस टेक्नोलॉजी को मोदी साहब ने 2.5 साल के अंतराल में देश में मास्टर करा दिया। तो अभी मैं हाल ही में G20 के जितने टेक्नोलॉजी डिजिटल मिनिस्टर्स हैं उनसे बातचीत कर रहा था। इतने आश्चर्यचकित है कि आपने 2-3 सालों में कैसे बना लिया। मैंने बताया उनको, जैसे आपके सामने शेयर किया वैसे मैंने उनके सामने शेयर किया। इतने आश्चर्यचकित रहे कि कोई पॉलिटिकल लीडर इतना टेक्नोलॉजी की गहराई में जाके देश को इस दिशा में ले जा सकता है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर दुनिया में, ऐसे रेयर ही कोई देश का नेता ऐसा है जो कि पॉलिटिकल लीडर विजन के साथ एक एक स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको सॉल्व करके टेक्नोलॉजी के रास्ते पे देश को आगे ले जा सकते। ये होता है ड्रीम्स मेड डिलीवरी। ये होता है प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का जो विजन है, उस विजन का। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे, कई ऐसे एग्जाम्पल है जो जीवन के ऐसे पहलू दिखाते हैं जो कि कई बार हमारी जानकारी में नहीं होते, हमने सुने होते हैं, लेकिन उसकी गहराई में जाएं। मैं आपको इस किताब से एक उदाहरण और लेके दूंगा। मैंने आपको टेक्नोलॉजी की बात बताई, मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात। हम गरीब से गरीब जनता के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या ला सकते? सबसे बड़ा परिवर्तन अगर लाने की बात अगर हम सोचें तो सबसे बड़ा परिवर्तन है एक जिंदगी जीने का नया तरीका देना, जीवन यापन करने का नया तरीका देना। कोई न कोई एक ऐसा बिजनेस पकड़ाना जिससे कि इंसान अपना काम कर सके, उसमें खुद का जीवन यापन भी करे, और साथ ही साथ 1 से 2 से 3 से 4 लोगों का पेट भी भर सके, और खुद काम करे, दूसरों को भी रोजगार दे सके। स्वामित्व स्कीम के बारे में कितने लोगों ने सुना? स्वामित्व, स्वनिधि, स्वनिधि के बारे में कितने लोगों ने सुना? स्वनिधि इतनी जमीन से जुड़ी हुई स्कीम है कि अगर आप जाके देखो, आश्चर्य करोगे कि इतना बड़ा डिफरेंस किसी की लाइफ में ला सकता है। मैं देश के कोने कोने में जहाँ जहाँ भी गया, अभी थोड़े दिन पहले सूरत की बात बताऊँ, उससे पहले कटक की बात, उससे पहले चेन्नई में जाओ तो, बेंगलोर में देखो तो, किसी भी शहर में जाके देख लो, शहर में जो हमारे रेडी पटरी वाले, खोमचे वाले, ठेला चलाने वाले, जो सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है, उनके लिए मोदी जी ने एक
तरीका सोचो, स्वनिधि का तरीका क्या है। इसमें स्वनिधि में है कि छोटे से छोटा कारोबारी 10,000 का अगर लोन लेता है, बिना कोई गारंटी के, बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन देखे, बिना कोई लैंड टाइटल कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, 10,000 का लोन लेके काम चालू करें। 10,000 का लोन लेके काम, छोटा सा ठेला है, उस पर काम चालू किया, काम आगे बढ़ा, 10,000 वापस जमा करा दे अगर, तो उसको 20,000 का लोन के लिए वो एलिजिबल हो जाए। 20,000 जमा करा ले वापस, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 50,000 के लोन के लिए एलिजिबल हो जाए। मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में लाखों की संख्या में ऐसे हैं, एग्जैक्ट नंबर अगर दो तो 8.5 लाख के आसपास ऐसे देश भर में एकदम छोटे कारोबारी है जिन्होंने स्वनिधि के माध्यम से अपनी जिंदगी को सक्षम बनाया। और हर जगह डिजिटल पेमेंट से एक ऐसा इकोसिस्टम बना है कि सारी की सारी दुनिया देख रही है कि अगर हमें जन जन तक कोई पहुंचानी है चीज, तो उससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं हो सकता। आज जब कोरोना वाला फेज निकला, जो बहुत सक्षम देश है, बहुत मजबूत देश है, उन देशों ने भी स्ट्रगल किया अपने नागरिकों तक पैसा पहुंचाने में। चेक लिखे जाते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। हिंदुस्तान में एक बटन दबाते हैं मोदी जी और सबके अकाउंट में सीधा, बिना कोई बीच में कट लगे, सीधा अकाउंट में पहुंच जाता है। ऐसा लोगों को विश्वास भी नहीं होता। जब मैं डिजिटल मिनिस्टर्स के सामने ये विषय रखा कि हमने 80 करोड़ लोगों के साथ, 80 करोड़ लोगों के अकाउंट में इस तरह से डायरेक्टली पहुंचा है, वो क्या 80 करोड़, 800 मिलियन, इतना आश्चर्य करते हैं कि कैसे। मैंने कहा चलो रुक जाओ थोड़ा सा, अभी थोड़े दिनों बाद में वापस पीएम किसान वाला दिन आ रहा है, उस दिन आप सब वीडियो देखना। तो लोगों ने नोट किया, यूट्यूब पे, नमो ऐप पे देखेंगे या फिर यूट्यूब पे जाके देखेंगे कि कैसे करते हैं। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स देश, ऐसे में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा जन जन को छूने वाली टेक्नोलॉजी हो सकती है। लेकिन है, ये है ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ये है एक ऐसा तरीका सोचने का जिसमें विजन, इम्प्लीमेंटेशन और कम्युनिकेशन तीनों साथ में। अब जैसे वंदे भारत का एग्जाम्पल लें, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा भाई? आपने देखा, छात्रों ने देखा, जिसमें 180 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, पानी का ग्लास पड़ा है? कितने लोगों ने देखा? सरस लगा, अच्छा लगा, मजा आया देख के? खूब मजा आया, लाइक किया उसको? यूट्यूब पे वगैरह पे देखा ना अच्छे से? अब देखो, मोदी साहब ने 2017 में कहा कि ऐसी ट्रेन बनाओ जो दुनिया की बेस्ट ट्रेन है। दुनिया की बेस्ट ट्रेन। देखो वो दौर है जब मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब का एक इकोसिस्टम बन रहा है। मोदी साहब हर तरीके से एक एक करके सारी चीजों को अपने सिस्टम में रख रहे हैं। मानसिकता ये थी उस जमाने में भी कि हम कैसे कर पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह लगता था। रेलवे के अफसर्स बैठे, भाई ऐसा होता था कि नहीं होता था? जब बोला था पहली बार, होता था। लोगों के माइंड में आता था कि कैसे हो सकता है। वर्ल्ड क्लास ट्रेन बने, जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, जापान जाओ, भारत में कहाँ, ऐसे सोचते थे। लेकिन उन्होंने चैलेंज दिया और पहली ट्रेन बन के आई 2019 में। बहुत अच्छी ट्रेन बनी, आज भी चल रही है। और अभी तक जो 2 ट्रेन बनी पहली 2019 के अंदर, अगर उसको देखो आप, चली है वो, अगर पृथ्वी की परिक्रमा, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा को अगर हम गिने, तो जितनी वो चली अभी तक बिना
कोई तकलीफ के, बिना कोई ब्रेकडाउन के 18 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ले, उतनी चली है बिना ब्रेकडाउन। ऐसी इंजीनियरिंग की मिसाल है ये। अब फिर साहब ने बोला कि भाई अच्छी बनी है, आप तो जानते हो, आप तो जानते हो सब जो काम किए वो साथ, जब भी काम करके आएंगे यहाँ पे होएगा, अब इतना यहाँ तक पहुंचो, जब यहाँ पहुंचेंगे तब कहीं यहाँ पहुंचो। ऐसे आगे से आगे से आगे से आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। तो कहा कि नहीं अब इसको और अच्छा बनाओ। उसकी स्पीड कितनी थी? 160 थी। और ज़्यादा स्पीड करो, और ज़्यादा उसमें क्वालिटी बनाओ। तो हम लोग लगे सब। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले से ही घोषणा कर दी थी कि 2023 के 15 अगस्त तक 75 नई वंदे भारत देश के कोने कोने को जोड़ेगी। सब के सब लोग लग गए बिल्कुल, और एकदम रेगुलरली पीएम साहब फॉलो अप करते हैं। थोड़े दिन अगर रिपोर्ट नहीं गई तो फोन आ जाएगा, कैसी तैयारी है भाई वंदे भारत की। एकदम रेगुलर फोन आ जाता है, रेगुलर फॉलो अप है। और डिजाइन में एकदम बारीकी से समझते हैं, बारीकी से उसमें आइडिया देते हैं क्या करना है। देखो भाई पहली बार जो बना उसमें सीट है, उस सीट में रिक्लाइनिंग चेयर नहीं, तो कोई व्यक्ति अगर 5 घंटे बैठ के जाएगा तो तकलीफ होगी। तो चेयर तो पीछे रिक्लाइनिंग होनी चाहिए, पीछे की तरफ थोड़ी सी खिसक सके ताकि आराम से कोई बैठे। बात सही है कि नहीं? ये मोदी साहब का आइडिया था। जो सामान रखने की जगह है उसमें और ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में थोड़ा ज़्यादा सामान लेके चलते हैं। गुजरात से जाओगे तो खाकरे लेके जाओगे ही जाओगे, गांठिया लेके जाओगे ही जाओगे, भाकरी लेके जाओगे ही जाओगे, है कि नहीं? तो सामान तो थोड़ा अपने ज़्यादा लेके चलते ही है। तो साहब ने कहा नहीं, सामान रखने की जगह थोड़ी सी ज़्यादा बनाओ। फिर देखो अभी अपने ट्रैक में बहुत काम बाकी है। तो जैसे ट्रक के अंदर सस्पेंशन होता है, ट्रक में चैसी होता है ना, ट्रक का नीचे चैसिस होता है, उसमें सस्पेंशन होता है। वैसे ही रेलवे में बोगी होती है नीचे, तो बोगी की डिजाइन वापस करो जिससे कि झटके बिल्कुल कम से कम आए। तो हम लोग बिल्कुल लग गए। तो इस बार जो बोगी की डिजाइन की, तो जैसे दो चीजों को, मेटल की दो चीजों को जोड़ेंगे तो उसके बीच में टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस हम सब समझते हैं। तो टॉलरेंस होता है मिलीमीटर में, टॉलरेंस जनरली मैकेनिकल चीजों में चलता है। अभी जो वंदे भारत बनी है उसकी बोगी में मिलीमीटर से भी कम माइक्रोन में टॉलरेंस है। माइक्रोन में इतना इतना फाइन उसकी मशीनिंग है, इतनी बारीकी से उसकी मशीनिंग है। और अंदर एयर स्प्रिंग है। एयर स्प्रिंग है, जैसे मान लो समझो कि एक कुशन लगा हुआ है, तकिया लगा हुआ है, जिससे कि झटके बिल्कुल नहीं लगे। ये सोच के डिजाइन करवाया, तो फिर रिजल्ट आएगा ही आएगा। ऐसा ड्रीम है, तो जब डिलीवरी होगी उस ड्रीम की, वो सपना जब साकार होता है तो फिर दुनिया हिल जाती है। सिर्फ वो ग्लास नहीं हिलती, सारी दुनिया हिल जाती है। ये है ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ऐसे होते हैं सपने साकार। एक और सपना साकार हो रहा है पास में, बुलेट ट्रेन का। कितने लोगों ने वीडियो देखा है बुलेट ट्रेन का? कितने लोगों ने देखा है कि किस तरह से एक टोटली नई टेक्नोलॉजी से, जो वायाडक्ट कहते हैं इसको, दो पिलर है, पिलर के ऊपर जो लग रहा ना गर्डर, गर्डर सिस्टम जो लग रहा है उसको वायाडक्ट बोलते हैं। उसका नया एक टेक्नोलॉजी है। वो नई टेक्नोलॉजी कितने लोगों ने वीडियो देखा? देखा? 1 2 3, हाँ, फुल स्पैन लॉन्चिंग, एकदम नया तरीका। पहली मशीन बाहर से लाए, उसके बाद में 8 मशीनें सारी हिंदुस्तान में बनी। पहला मोल्ड उसका कोरिया से लाए, और उसके बाद में सारी मशीनें राजकोट में बनी। अच्छा नहीं लगता सुन के? भाई अच्छी चीज है, उसको तो
जैसी है उससे बेहतर बना के वापस एक्सपोर्ट करना है ना यही तो है मेक इन इंडिया। अच्छी से अच्छी चीज लाए, सीखें और उसको एक्सपोर्ट करें। अब देखो, जापानीज बोलते थे कि भाई सारी की सारी जमीन जब तक अक्वायर नहीं होगी तब तक काम नहीं करने देंगे, मतलब काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनका एक सोचने का तरीका, और वो सही भी है, अपने तरीके से सही भी है। अपने यहाँ तो महाराष्ट्र में जमीन देने से मना कर रहे थे, तो काम कैसे चालू करें? तो हमने लोगों ने बोला कि भाई ऐसा है, काम तो चालू करना है। तो काम चालू किया। तो शुरू शुरू में तो उनको लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, और 4 महीने के बाद में वो तो बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित कि ये क्या हो रहा है। एक के बाद 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 एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लैब सूरत में बनी। एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लैब सूरत में बनी। इतनी फास्ट, इतनी तेजी से काम उस पर हो रहा है अभी कि जाके आप जरूर देखो। पक्का आपको जब भी चांस मिले उस रास्ते से जाओ, थोड़ा सा डाइवर्जन लो और अंदर जाके देख के आओ, एक आनंद आएगा, एक मन में सेटिस्फेक्शन आएगा कि हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज बन रही है जो हमारी यंग जनरेशन के एस्पिरेशंस के हिसाब से बन रही है। जो आपका सपना है कि हम तो अब कुछ टाइम बाद में निकल जाएंगे, तुम लोगों के लिए अच्छा देश तो छोड़ के जाना ना। तो एक अच्छे से अच्छा भविष्य किस तरह से निर्माण करें, वो मोदी जी का ड्रीम मीट्स डिलीवरी का सपना है। मैं यहाँ पे रुकूंगा और क्वेश्चंस, कमेंट्स, कोई भी आपकी गाइडेंस इन सब चीज़ों पे, क्योंकि रेलवे अपने आप में एक ऐसा विषय है और टेलीकॉम ऐसा विषय है जिसमें आपके माइंड में कई बातें हो सकती है। तो ओपन टू कमेंट्स, ओपन टू सजेशंस। थैंक यू। Thank you very much, sir, for your inspiring words. Now, floor is open for the healthy discussions. टाइम मेंटेन किया ना गाड़ी ने? तो रेलवे में काम करते हैं ना, तो गाड़ी अगर ठीक टाइम पे नहीं आए, मैंने अपनी टीम को बोला कि 2 बजे का टाइम दिया हुआ वहाँ पे 2 बजे पहुँच जाना भाई, वरना कहेंगे रेल ट्रेन लेट आ गई तो हमने कहा लंच मिस करो लेकिन पहुंचो टाइम पे। पता माइक देंगे वहां पे? Sir, first of all, welcome to Gujarat and thanks for this inspirational speech. सर मेरा सवाल ये है कि पहले हम लोग देखते थे कि रेलवे मतलब डिले एक सिनोनिम्स था, हर गाड़ी डिले आनी तय थी। बट काफ़ी पिछले कुछ सालों से हमने ऑब्जर्व किया है, मतलब ट्रैवल भी किया है, पर एक जो बोलते हैं ना फ्रैक्शन ऑफ एक लिमिटेशन को टूट चुका है कि मतलब हार्डली 1000 में से कोई एक गाड़ी होगी जो डिले होती है, वो भी कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स के लिए। तो सर ये पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है रेलवे के अंदर? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 3 चीजें इसमें। पहला तो सेल्फ डिसिप्लिन। अगर कोई भी संस्था, चाहे वो कॉलेज हो, बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, सरकार हो, कोई भी संस्था अगर एक बार डिसाइड कर ले कि हमें अपने डिसिप्लिन में रहना, तो वो रह सकते। दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग। मैसिव पीएम साहब ने सारे के सारे टाइम टेबल को कंप्यूटराइज किया। हर एक ट्रेन की पोजीशन कहाँ पे है वो कंप्यूटर पे है आज। कहाँ पर भी देरी होती है तो सीधा डैशबोर्ड पे आ जाता है। ज़्यादा देरी है तो जो ड्राइवर है उसी को ही समझ में आ जाता है, और जो उसके ऑपरेशन कंट्रोल के लोग हैं उन्हीं को समझ में आ जाता है कि आज क्लास लगेगी। तीसरा, रूट कॉज में जाओ, किसी भी चीज़ के जड़ में जाना। मोदी जी कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट सुधार लाने का अवसर है। आप जानते हैं उनकी कितनी पॉजिटिव माइंड है, हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं। हमको तो यहाँ तक वो कहते हैं कि सीएजी का ऑडिट भी आपके लिए सुधरने का, एक सुधारने का, सिस्टम को सुधारने का बहुत बढ़िया जरिया है।
कि भाई कोई जितनी ज़्यादा खोद खोद के गलती निकालेगा उतना ही आपके पास सुधारने का मौका बढ़ेगा। तो रूट कॉज में जाएं। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर बार बार कोई डिले हो रहा है या कोई एक ट्रेन बार बार डिले हो रही है तो उसकी रूट कॉज में जाओ, समझो क्या दिक्कत है और उसको सॉल्व करो। इस तरीके से ये परिवर्तन आया। Thank you for this lovely insight on the latest developments. And I must say, it's enriching for me, and I'm sure enriching for a lot of people around here. Sir, I wanted to kindly sort of request on a family's note and also to the young generation to create more awareness and probably encourage the institutions to give sort of hands-on experience to what are the latest developments happening. Is there a way, in a small or a big way, that the institutes can, like schoolings or the colleges, can be encouraged and probably made some sort of mandatory requirements so that people are more aware, students are more aware, and get into more innovative mindset moving forward? बहुत सही कहा आपने, क्योंकि स्टूडेंट और जो यंग जनरेशन अगर इनोवेटिव माइंडसेट की तरफ बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, जो हम लोगों का एक नेचुरल एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, उसमें बहुत एक डबल ट्रिपल 4 गुने जंप आएगी। इसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल्स तो लिए ही गए, स्टार्टअप के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बोलते हैं, और कई सारे ऐसे मतलब कॉम्पिटिशन्स भी किए गए। अभी मैं हाल ही में एक कॉम्पिटिशन बताता हूँ। डिजिटल इंडिया के तहत जो स्कूल्स हैं बिल्कुल विलेजेस में, बड़े शहर को छोड़ भूल जाओ, हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर, ऐसे दिल्ली, बड़े शहरों को भूल जाओ, बिल्कुल छोटी छोटी जगह के स्कूल्स, उसमें करीब करीब 50-60 हजार बच्चों का कंपटीशन हुआ। टॉपिक क्या दिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कोई नया प्रोडक्ट आइडिया बनाओ। आप विश्वास करोगे ऐसे 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 एग्जाम्पल्स आए। मैं सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताता हूँ जो पीछे स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए। एक बच्चे ने उड़ीसा के जाजपुर, एकदम रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट की एक स्कूल है, उस स्कूल के एक बच्चे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्लास में जो बच्चों को नींद आ जाती है उसको कैसे पहचाना जाए और उसको कैसे करा जाए। क्यों भाई, पसंद आएगा वो रिजल्ट? आती है नींद ना? अब तुम बोलोगे नहीं आती तो झूठ है। तो कहने का मतलब आपने सही कहा, स्टूडेंट्स में इतनी एनर्जी है, नींद नहीं आती है उनको। और लेकिन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आइडियाज निकलते हैं बच्चों के माइंड से, यंग माइंड से, फ्रेश माइंड से, नए तरीके से सोचते हैं। तो वो एक प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है और उसको और आगे बढ़ाएं। सर अभी आपने फर्स्ट गियर की बात अश्विन की। भाई बोलो, चलेगा। अश्विन जी, आपने फर्स्ट गियर की बात की, सेकंड गियर की बात की, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि गियर तो टॉप गियर है तो भी गाड़ी चलती है, अगर पूरी रफ्तार चाहिए तो। अभी एक तरफ हमारे गुजरात के अंदर एक माहौल चल रहा है रेवड़ी कल्चर का, और एक तरफ माहौल चल रहा है टेक्नोलॉजी का। तो मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। इस समय में हम युवा लोग क्या कर सकते हैं, व्यापारी लोग क्या कर सकते हैं? हो सकता है थोड़ा विषय हटकर है, लेकिन आपके अनुभव से कुछ शेयर कर सके तो मैं। बहुत कुछ सही समझ- विषय है, बिल्कुल एकदम सामयिक विषय है। हम सब के सब जिस दिन प्रण कर लेंगे कि हम सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपनी हिम्मत के साथ इस देश को आगे ले जाएंगे, 140 करोड़ भारतीयों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि कोई हमें रोक नहीं सकता। मैंने आपको जो भी एग्जाम्पल दिया, चाहे वंदे भारत का एग्जाम्पल दिया, 5G का एग्जाम्पल दिया, सेमीकंडक्टर बहुत जल्दी बड़ी चीज बनने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल दिया, स्टार्टअप का एग्जाम्पल दिया, API का एग्जाम्पल दिया, डिजिटल
जो पूरा इकोसिस्टम बना उसका एग्जाम्पल दिया। ये ताकत है हमारी। इस देश को कोई भी पीछे रोक नहीं सकता। कितनी भी लुभावनी बातें करने वाले लोग आ जाएं, ये देश जानता है कि हमारी ताकत कहाँ है, ये हमारी शक्ति कहाँ है, और हम अपनी शक्ति से इस देश को कहाँ लेके जाने वाले हैं, ये 140 करोड़ लोग जानते हैं। कोई नहीं रोक सकता। Hello. Sir, my question is little technical regarding to tractions in our India. Renewable resources जो power sector के साथ है, हमारे ट्रैक्शन सिस्टम मतलब हमारे रेलवेज के साथ कोलैबोरेट करके एनर्जी एफिशिएंसी जो हमने अभी कोल की कमी की वजह से एक बार फेस किया है, तो वो फ्यूचर में रेलवे का क्या प्लान है एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रेलवे के साथ इंटीग्रेट करने का? क्या नाम है आपका? शिवांग पंड्या। शिवानंदु भाई के लिए बहुत जोर से ताली बजाएं। बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं इसको टेक्निकल प्रश्न को थोड़ा सा सरल भाषा में कहने की कोशिश करूंगा, पर जहां पे टेक्निकल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी करूंगा। रेलवे ने अपने पूरे के पूरे सिस्टम में रिन्यूएबल एनर्जी और रीजनरेशन, इन दो चीजों को ध्यान में रख के पूरा नेटवर्क अब डेवलप होगा। रीजनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी तो आप सब समझते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। रीजनरेशन क्या है? देखो, कोई भी मोटर को अगर चलाना है तो उसमें हम करंट डालते हैं। करंट जब जाती है मोटर में तो वो मोटर घूमती है। जब ब्रेक लगाना है तो क्या होता है? बहुत लोग जानते हैं। जब ब्रेक लगाना होता है तो वो मोटर बन जाती है जनरेटर। मोटर बन जाती है जनरेटर। ये तभी संभव है जब टेक्नोलॉजी हम रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी यूज करें। रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी मतलब अब करीब करीब हर चीजों में आने लग गई है। तो रेलवे ने तो बड़ी संख्या में इस तरह से काम, अब जितना नया डेवलपमेंट हो रहा है, वंदे भारत है, तो वंदे भारत जब भी ब्रेक लगाती है, बिजली प्रोड्यूस करती है, पावर प्लांट की तरह काम करती है, और ऊपर जो तार है ना, उस तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को वापस डाल देती है। जैसे पीछे जो गाड़ी आ रही है या आगे जो गाड़ी है, वो उसको उस बिजली का उपयोग कर रही है। ये है रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी का कमाल। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और रेलवे 100% उस तरफ जा रहा है। एक जमाना था वो अलग था, जिसमें जब ब्रेक लगाते थे तो जो एनर्जी होती थी वो हीट बन के डिसिपेट करते थे उसको। वेस्ट है, ऐसा वेस्ट क्यों करें? बेस्ट है कि उस एनर्जी को वापस रीजनरेट करके ऊपर के तार में डाल दें। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। समय की मर्यादा आप अध्यक्ष जी देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। रेलवे में 3 चीजें हो रही है सोलर के बारे में। पहला है कि रेलवे की पटरियों के साथ, ट्रैक्स के साथ यथासंभव जहां पर भी सफिशिएंट लैंड अवेलेबल हो, वहां पे रेलवे के ट्रैक्स के साथ सोलर प्लांट लगाने का। दूसरा, स्टेशंस के ऊपर करीब करीब अगले 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर करीब करीब सभी स्टेशंस के ऊपर सोलर पैनल लग जाएंगे। और तीसरा, मेगा सोलर पार्क। कोशिश ये रहेगी, रेलवे मोदी साहब ने उसको पूरा इलेक्ट्रीफाई तो कर ही दिया है। डीजल तो अब बहुत ही इक्का दुक्का कहीं बचा है, करीब करीब सारे ही बिजली पे शिफ्ट हो चुका है। 6 साल 7 साल में इतना काम किया। पहले 1000 किलोमीटर साल का होता था इलेक्ट्रिफिकेशन, अब होता है 6000 किलोमीटर। मतलब पूरी इंडस्ट्री एकदम बिल्कुल अलग ही लेवल पे आ गई। तो अब है, नेक्स्ट स्टेप है जितना हो सके उसको रिन्यूएबल एनर्जी पे लाए, ये सोलर का। करीब करीब 40% स्टेशन हो गए ऑलरेडी। ना ना भाई, 40% का मतलब समझ लो कितने हुए? 2400 होंडा के प्लांट।
एक प्लांट नहीं सुनो सुनो, नहीं सुनो, ये एक जर्नी है, जैसा मैंने कहा 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर complete। नमस्ते सर, और गुजरात में आपका स्वागत है। मुझे गौरव है कि आप भी IITN है, मैं भी IITN हूँ। और एक मेरा सुझाव है कि जो रेलवे में सीनियर सिटीजन को जिस तरह धर्म आधारित यात्राओं का अलग से मौका दिया जाता है, इस तरह जो लोग स्टार्टअप वाले हैं या जो इंजीनियरिंग में या जो लोग टेक्नोक्रेट्स है या इंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, वो लोगों को रेलवे अलग से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की यात्रा करवाए कि भाई केमिकल तो अंकलेश्वर है, भरूच है, या कोई कपड़े का बिजनेस है तो कानपुर विजिट करवाए या वगैरह। इस तरह कोई अलग से प्रावधान किया जाए तो अच्छी बात है। और उसके देखो, लिए क्या कर सकते हैं? जरूर आप रेलवे का टिकट खरीदें। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि रेलवे की बहुत सारी जमीन अनडेवलप पड़ी है और अनयूजेबल पड़ी है, तो उसके लिए अपना मंत्रालय कुछ सोच रहा है, कुछ डेवलप करने का PPP के हिसाब से या कुछ? 15 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने लैंड पॉलिसी अप्रूव की है। इस लैंड पॉलिसी में लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी काम होगा रेलवे के साथ जुड़ने के लिए, कोई भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाए, कोई भी वेयर हाउस बनाए, इस सब को रेलवे की जमीन के उपयोग से बनाया जा सकेगा। शायद आप न्यूज़ आप थोड़ा सा पढ़ना, रेलवे लैंड पॉलिसी बस अभी 15 दिन पहले हुई है, तो उससे बहुत तेजी से उसमें काम। Sir, sorry to interrupt. We have received couple of suggestions જે મેમ્બર્સના આવ્યા છે રેલવેઝના રિસ્પેક્ટથી, એ સરને કમ્પાઇલ કરીને આપણે આપી દઈશું સો દેટ આ આખા હાઉસનો ટાઈમ એમાં બગડે નહીં. થેન્ક યુ. Okay. Very good afternoon, sir. My name is Purav. As we are sitting in Gujarat Chamber of Commerce, and this is industrial forum, and they will be the largest user of private 5G network. So few words around that, if you can say to all the industry people and commerce people on private 5G. प्राइवेट 5G बहुत अच्छा विषय है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, मैं इसको सरल भाषा में बताता हूँ। नेटवर्क अगर लगाना है तो उसमें क्या क्या चाहिए? टावर चाहिए, टावर के ऊपर इक्विपमेंट चाहिए, और स्पेक्ट्रम चाहिए, और पूरे के पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, IMS, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर के पीसेस है वो सब चाहिए। अगर एक छोटा आइसोलेटेड नेटवर्क बनेगा, वो केवल अपने एरिया में ही काम करेगा, बराबर है। अब इसके लिए जो पॉलिसी का डिसीजन लेना था, वो फैसला प्रधानमंत्री जी ने जून में अप्रूव कर दिया। स्पेक्ट्रम को हिंदुस्तान में अपने स्पेक्ट्रम से रिलेटेड पिछली सरकारों ने बहुत अलग अलग कई तरह के काम किए थे, जिसके कारण कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा। 2G सब जानते ही हैं। हमारी सरकार में मोदी जी का बहुत स्पष्टता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिसमें कोई कभी किसी तरह की गलती हो। देश राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, हमेशा एक वही भावना रहती है। तो स्पेक्ट्रम जो लोग ऑक्शन में लेके आएंगे, उन्हीं लोगों को स्पेक्ट्रम मिलेगा, मतलब ऑक्शन के बिना स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में लिया है, उनसे आप ऑक्शन में लिए हुए स्पेक्ट्रम को लीज में लेके प्राइवेट नेटवर्क में लगा सकते हैं, राइट? या फिर जो लोग नेटवर्क के ऑपरेटर्स ऑलरेडी हैं, वो लोग आपके लिए एक प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं। तो वो अब पॉलिसी डिसीजन हो गया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने में जहां भी इंटरेस्ट हो, जिस भी इंडस्ट्री को इंटरेस्ट हो, वो आए सामने। थोड़ा सा डिफिकल्ट विषय है ये। ओके,
थैंक यू। पक्का होएगा, पक्का होएगा, 100% होएगा। देखो अहमदाबाद बॉम्बे इज अ क्लासिक, वी कॉल इट ओडी पेयर, ओरिजिन डेस्टिनेशन पेयर, जो कि रेल ट्रैवल के लिए हाईली सुटेबल है। कैसे? दो बहुत बड़े पॉपुलेशन के हब्स, राइट, दो बहुत बड़े बिजनेस कॉमर्शियल हब्स, डिस्टेंस 500 किलोमीटर, 540 किलोमीटर समझो। 500 से 550 किलोमीटर जो डिस्टेंस होती है, दैट डिस्टेंस इज आइडियल फॉर अ ट्रेन जर्नी, आइडियल फॉर अ ट्रेन जर्नी। नाउ हाउ डू यू डू दैट इन 3.5 आवर्स? बुलेट ट्रेन आपकी लेके जाएगी 2 घंटे 40 मिनट में, लेस देन 3। बुलेट ट्रेन 2 घंटे 40 मिनट में लेके जाएगी, लेस देन 3। और वंदे, अभी आप वंदे 2 देख रहे हैं, इसकी जो वंदे 3 बनेगी उसमें पीएम साहब ने हमको, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, यहाँ पहुंचो तब कहते हैं यहाँ पहुंचो, यहाँ पहुंचो तब कहते हैं यहाँ पहुंचो। तो वंदे 3 का ऑलरेडी उन्होंने टारगेट दे दिया कि 220 किलोमीटर की स्पीड की करनी। तो वो 220 की स्पीड से चलेगी। अब 220 के हिसाब से ट्रैक्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ट्रैक के लिए 5 बड़े इनिशिएटिव्स लिए, पूरे के पूरे ट्रैक का रीडिजाइन करें, पहला। दूसरा, जो रेलवे की पटरी है, जिसको हम लोग रेल बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, रेल को एक नई टेक्नोलॉजी की, हायर स्ट्रेंथ की बनाना है। तीसरा, जो क्रॉसओवर्स होता है, एक पटरी से दूसरी पटरी जहाँ जुड़ती है, वहाँ पे स्पीड बहुत कम हो जाती है और बहुत वो टाइम कंज्यूम करती है, उसको नई टेक्नोलॉजी का लेके आना है। चौथा, सेफ्टी सिस्टम, कंप्लीट सेफ्टी सिस्टम रिवैम्प। कवच नाम आपने सुना होगा, कितने लोगों ने वीडियो देखा है कवच का? देखा है? उसमें बड़ा मजा आया था, बैठिए ना, बड़ा मजा आया था उसमें। जब कवच की टेस्टिंग करनी थी तो मैंने हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब को बोला कि एक ट्रेन में मैं बैठूंगा, दूसरी ट्रेन में आप बैठना। मुझे किसी ने सजेशन दिया कि दोनों मंत्री को बैठा देते हैं, आमने सामने ट्रेन आएगी, मंत्रियों को ऐसे ही ऑफिसर्स ठिकाने लगाने की प्लानिंग करते हैं। मैंने बोला कि नहीं नहीं, मंत्री नहीं बैठेंगे, एक तरफ मंत्री बैठेगा, दूसरी तरफ ऑफिसर बैठेंगे। तो दूसरी ट्रेन में बैठे चेयरमैन साहब, एक ही पटरी पे 130 की स्पीड पे 2 ट्रेन आई, सेम पटरी, एक ही पटरी पे 130 की स्पीड से ट्रेन आई। मतलब जनरल मैनेजर जो मेरे साथ थे, जीएम साहब बैठे हैं, एक सिकंदराबाद के जीएम साहब जो साथ थे, जब तक मैं गाड़ी में नहीं चढ़ा ना, तब तक वो बोलते रहे कि साहब आप मत चढ़ो इसमें, हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे ना। बोलते कि मतलब हैदराबाद से जब तक एयरपोर्ट से हम रवाना हुए, लगातार गाड़ी में मेरे साथ बैठे बैठे बोल रहे हैं कि क्यों चढ़ रहे हो आप इसमें, हम कर लेंगे ना टेस्टिंग। नहीं मुझे तो जाना है। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, मैं लगातार ड्राइवर की तरफ देख रहा हूँ कि कहीं वो कोई ऐसा ब्रेक छुपा के रखा होगा, वो ब्रेक लगा देगा। लेकिन विश्वास मानो, विश्वास मानो, दोनों ट्रेन तेजी से आ रही है, एकदम ठीक 380 मीटर की डिस्टेंस पे दोनों में ब्रेक लगता है, अपने आप ब्रेक लगता है। आप वो वीडियो देखो, समटाइम इट्स रियली रियली एकदम थ्रिलिंग, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्रेक का पेडल अपने आप नीचे आ रहा है। ब्रेक का जो पेडल है हाथ से होता है, उसमें पाँव से नहीं होता ब्रेक ट्रेन में, तो वो अपने आप नीचे आ रहा है, जैसे कोई भूत चला रहा हो उसे, कवच चला रहा था उसे। कवच का कंट्रोल है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। Thank you very much, sir. Thank you for being the Thank you. wonderful धन्यवाद। audience. आप जो
I request Honorary Treasurer Shri Apurva Shah to please propose vote of thanks on behalf of Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Ladies and gentlemen, please seat at your place. Please Good be seated. afternoon. Honorable Union Minister of Railway, Communication, Electronics, Information Technology, Government of India, Shri Ashwini Vaishnavji, Honorable Mayor Shri Kiritbhai Parmar, Principal Secretary, Education Department, Government of Gujarat, Shri S.J. Aidarji, Office Bearers of Gujarat Chamber of Commerce and Industry, senior officers from Railway Department and Government Departments, members of GCCI, representatives from the press and media, ladies and gentlemen, it's my pleasure to offer the vote of thanks on behalf of all the members of Gujarat Chamber of Commerce and Industry. I thank you, sir, for accepting our invitation on a short notice and gracing the knowledgeable interactive session Modi at 20. Dreams meet delivery, very well explained by sir, with Shri Ashwini Vaishnavji, Honorable Minister of Railway, IT, Government of India, interacting with us today. So it was really a very insightful, motivating, enlightening session today. A wide round of applause for sincere thanks to Shri Ashwini Vaishnavji. Last but not the least, I thank all the representatives from press and media who've always participated in the session today. You've always been a great support in all the initiatives. We'll have the national anthem, and after that, the refreshments, please. द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request everyone to please